previous lecture we have discussed about the chemical reaction, right? So now we'll discuss the characteristics of chemical reaction. Now we'll discuss characteristics of chemical reaction. Characteristic of chemical reaction suggests you that a chemical reaction has been performed or the chemical reaction has taken place. There are certain characteristics. First is evolution of gas. Second is change in temperature. Third is change in color. Fourth is formation of precipitate. And fifth is change in state. These are 5 characteristics जो आपको बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है या कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट? ये पांचों आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक या कोई दो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म हो सकते हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. हम सभी को एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. इसका मतलब है कि कोई गैस इवॉल्व होगी. ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है तो आपके पास कोई गैस इवॉल्व होगी. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, दैट इज जिंक. जिंक इज अ मेटल which reacts with H2SO4, that is sulfuric acid. Okay, when they both react, then zinc sulfate is formed, that is ZnSO4, and हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है, जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. ओके, क्लियर? दिस इज जिंक, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड. This is your zinc sulfate and this is hydrogen gas. Okay, so this reaction is an example of evolution of gas in which the hydrogen gas has been evolved. Okay, let us take another example. Here I am reacting magnesium. Again it is a metal which reacts with hydrochloric acid, HCl. It forms magnesium chloride plus hydrogen gas. Again the gas evolved as hydrogen. Mg is magnesium, HCl is hydrochloric acid, MgCl2 is magnesium chloride and this is hydrogen gas again. Okay, always remember whenever metal reacts with acid, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? आपके पास एक मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. ओके, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द प्रोडक्ट्स, हमेशा याद रखिए व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा आपके पास क्या बनेगा? एक मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. Okay, so
In this, we have taken the example of evolution of hydrogen gas. Let us take another example. एक और example लेते हैं हम. We are taking Na2CO3, sodium carbonate, okay, and reacting it with hydrochloric acid. Reacting it with hydrochloric acid. It is sodium carbonate which is being reacted with hydrochloric acid. It will give you NaCl plus water plus carbon dioxide. Okay. Sodium carbonate, Na2CO3 is sodium carbonate. This is hydrochloric acid. This is your sodium chloride, the common salt, water and carbon dioxide. Okay, so in this the gas evolved is carbon dioxide. Okay, in the previous example the gas evolved was hydrogen. In this example the gas evolved is carbon dioxide. Okay. Now when the gas evolved, the gas has no color. Okay, some gases may have color but generally gases have no color. So how do we identify that the gas evolved is hydrogen or is oxygen or is carbon dioxide? Okay, so there is a test for hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक टेस्ट होता है. वो टेस्ट क्या होता है? जब आप बर्निंग स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं, जब आप बर्निंग स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आएंगे, then what will happen? The pop sound will be heard to you. आपका जो गैस बर्न हो रही होगी उसके साथ आपको क्या सुनाई देगी? एक पॉप साउंड सुनाई देगी. या तो आप बर्निंग स्प्लिंटर ले आइए या आप बर्निंग मैचस्टिक ले आइए, दोनों ही आपको क्या देंगे? पॉप साउंड देंगे. ओके, पॉप साउंड कंफर्म करती है आपको जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एग्जाम्पल में इवॉल्व हुई है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आप क्या कर सकते हैं? इधर यू ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब के पास आप एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर आइए. इट विल बी पुट ऑफ. ये क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी. ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? फायर एक्सटिंग्विशर होती है, मतलब फायर को बुझा देती है, आपको बुझा देती है ये. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो आपकी बर्निंग मैचस्टिक को पुट ऑफ कर देगी. इट कंफर्म्स दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन सेकेंड टेस्ट क्या हो सकता है आपके पास? सेकेंड टेस्ट हो सकता है दैट यू पास द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फ्रेश लाइम वाटर. फ्रेश जो लाइम वाटर होता है उसके थ्रू आप पास करिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा? मिल्की अपीयरेंस देगा आपको. दिस मिल्की अपीयरेंस कंफर्म्स दैट द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. जो गैस इवॉल्व हुई है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, लाइम वाटर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपका लाइम वाटर जो होता है वो चूना जो होता है, चूने का पानी होता है. ओके, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. When we pass the carbon dioxide gas through it, it turns milky in appearance. Okay, so this was the first characteristic, that is evolution of gas. Okay, let's try next characteristic. दूसरा characteristic लेते हैं. Second characteristic is change in temperature. ओके, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक
can have two things. The temperature can rise or the temperature can fall down. मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है. When the temperature rises in the reaction, जब रिएक्शन में टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. ओके, इट मीन्स द हीट इज बीइंग गिवन आउट इन द रिएक्शन. जो हीट है वो बाहर आ रही है रिएक्शन में, आप ऐसा बोल सकते हो. और द हीट इज बीइंग रिलीज्ड, इसलिए हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एंड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स डाउन, जब टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन ने हीट एब्सॉर्ब की है. इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन हियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन and endothermic reaction. ओके, ज्यादातर जो रिएक्शंस है वो आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है. एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें आपकी हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है. ठीक है, कुछ रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है. अभी जो हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक में एग्जांपल लिया था, दैट वाज जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. क्या बनाया था इसने? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2. ओके, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मतलब जब आप इसके टेस्ट ट्यूब का बेस टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा? गर्म लगेगा. ओके, सो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर. पहले टेम्परेचर कम था, रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया. ओके, अनदर एग्जांपल वी कैन टेक, दैट इज क्विकलाइन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, क्विकलाइन इज calcium oxide. This is quicklime. Plus water, H2. Okay, calcium oxide when reacts with water, it gives you slaked lime. Slaked lime is calcium hydroxide. Slaked lime. Okay, and this is water. ठीक है, ये रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो आपका कंटेनर या आपका जो टेस्ट ट्यूब है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. इतना ज्यादा गर्म हो जाता है दैट इट कैन इवन बॉइल वाटर. पानी को भी गर्म कर सकते हैं. इसकी जो हीट निकली हुई होती है उससे आप पानी भी गर्म कर सकते हो. ये रिएक्शन आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, लाइक जिसके घर में व्हाइट वॉशिंग होता है, ठीक है, तो चूना जो होता है उसमें हम पानी मिलाते हैं तो आप चूने के कंटेनर को हाथ लगाना कभी, बहुत गर्म हो जाता है. ठीक है, वो यही रिएक्शन होती है. दैट इज क्विकलाइम इज बीइंग चेंजिंग इनटू स्लेक्ट लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड इज बीइंग चेंजिंग इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो दैट इज अगेन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये भी आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही. ओके, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें आपकी हीट क्या होती है? बीइंग एब्सॉर्ब होती है. मतलब रिएक्शन होने के बाद आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा रिएक्शन का. ओके, सो इन दिस द when you touch the base of the container or when you touch the base of the test tube it will become cold. ये क्या हो जाएगा? आपका ठंडा हो जाएगा. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम. when we have barium hydroxide, okay, and ammonium chloride. बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करवा रहे हैं? रिएक्ट करवा रहे हैं. दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड. ओके, when we react both these compounds, what will we get? That is barium chloride, ammonia and water. Okay, we will get barium chloride
ammonia, it will be a gas, and water. Okay? इस रिएक्शन के होने के बाद जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे विच इज कंटेनिंग बोथ दीज थ्री प्रोडक्ट्स, तो आपको बेस क्या लगेगा, बहुत ठंडा लगेगा. इट मीन्स द हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड एंड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो दिस वाज अबाउट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर कैन ईदर राइज और फॉल डाउन. या तो राइज हो सकता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर फॉल डाउन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका चेंज इन कलर. नेक्स्ट इज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये रोजाना हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं. ओके, सो चेंज इन कलर के बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास केमिकल रिएक्शन में. लाइक व्हेन यू कट एन एप्पल एंड कीप इट फॉर सम टाइम, जब आप एप्पल को कट करके थोड़ी देर तक रख देते हैं तो कौन से कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. राइट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर. बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको आप कट करके रख देते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है. जैसे ब्रिंजल हो गया आपके पास, पोटैटो हो गया आपके पास, देन आपके पास बॉटल गॉर्ड हो गया, लौकी. ठीक है, तो इन सब के कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं व्हेन यू कीप देम कट फॉर सम टाइम. ठीक है, तो उनका कलर चेंज हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर. ठीक है, ओके. इसके लिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लेंगे, ज्यादा टफ एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे. चेंज इन कलर का सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, that is copper sulfate, CuSO4, when reacts with iron. Okay, CuSO4 when reacts with iron, it forms iron sulfate plus copper. ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है. ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास चेंज इन कलर का एग्जाम्पल. चेंज इन कलर एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे उसका भी एग्जाम्पल है. चेंज इन कलर का कैसे है, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. कॉपर सल्फेट जो होता है आपके पास वो ब्लू कलर का होता है. ठीक है, जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो आयरन सल्फेट बनेगा आपके पास विच इज ग्रीन इन कलर. ओके, सो ब्लू कलर इज बीइंग चेंज टू ग्रीन कलर. जो ब्लू कलर है आपका वो किस कलर में चेंज हो गया है, ग्रीन कलर में चेंज हो गया. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर. ओके, देन पोटेशियम परमैंगनेट. its formula is KMnO4, potassium permanganate. Okay, this potassium permanganate is pink in color. पिंक और पर्पल बोल सकते हैं. ठीक है, पर्पलिश पिंक कलर का होता है ये पोटेशियम परमैंगनेट. इसमें अगर आप लेमन जूस डालते जाएं ड्रॉप बाय ड्रॉप, इफ यू ऐड द लेमन जूस ड्रॉप बाय ड्रॉप इन दिस सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, तो उसका जो पर्पल कलर है धीरे धीरे क्या होता है, फेड होते जाता है एंड at last it becomes transparent. लास्ट में क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. So again it is a example of change in color when potassium permanganate is being reacted with citric acid. लेमन में citric acid होता है. ठीक है, तो आपका जो पर्पल कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन में. पर्पल टू कलरलेस. ओके, so again this is an example of change in color. Okay, then एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, that is potassium dichromate, K2Cr2O7.
Okay, potassium dichromate. When it is being reacted with sulfur dioxide SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसलिए हमने इसको H2SO4 को लिखा है, बिकॉज इट इज बीइंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसलिए हमने H2SO4 लिखा है। तो आपका जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज ऑरेंज इन कलर, potassium dichromate, it is orange in color. When sulfur dioxide gas is passed over potassium dichromate, it becomes green in color. जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ऑरेंज कलर जो है वो कौन से कलर में चेंज हो रहा है, ऑरेंज इज चेंजिंग इनटू ग्रीन कलर, ठीक है। द प्रोडक्ट्स विल बी K2SO4, that is potassium sulfate, chromium sulfate and water, ठीक है। सो दिस वाज आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज चेंज इन कलर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट मीन्स व्हेन अ सॉलिड इज बीइंग सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, अलग से एक लेयर फॉर्म कर रहा है, उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। सम ऑफ द रिएक्शन फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ओके। एंड दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो फॉर्मेशन करती है प्रेसिपिटेट का, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। वी हैव लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। हमारे पास है लेड नाइट्रेट, जिसको हम रिएक्ट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। दिस इज लेड nitrate which we are reacting with potassium iodide, ठीक है। then we will get lead iodide and potassium nitrate। हमें क्या मिलेगा इसमें? lead iodide मिलेगा and potassium nitrate में, okay। this is an example of formation of precipitate। आपको यहाँ पे lead iodide का yellow precipitate मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, दैट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2, ओके, प्लस H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? BaSO4 प्लस HCl, ये आपके पास बेरियम क्लोराइड
ये है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपके पास बेरियम सल्फेट, और ये है आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Okay, here you are getting BaSO4 as a precipitate and white precipitate मिलेगा आपको. कौन सा precipitate मिलेगा? White precipitate आपको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी आपको. First reaction, when lead nitrate was reacting with potassium iodide, then you get a precipitate of lead iodide that is yellow in color and potassium nitrate in solution. ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम्पल था जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था, which results in formation of barium sulfate as white PPT and hydrochloric acid in solution. ठीक है, ये आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, लास्ट दैट इज चेंज इन स्टेट. फिफ्थ है आपके पास चेंज इन स्टेट. स्टेट का मतलब है कि सॉलिड आपका प्रोडक्ट था तो लिक्विड हो गया, या लिक्विड हो गया, लिक्विड था पहले तो गैस हो गया, गैस था पहले तो सॉलिड हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें. तो आपके पास इसमें स्टेट चेंज हो रहा है. जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे उनका स्टेट चेंज हो रहा है. It can be from solid to liquid, liquid to gas or gas to solid. Okay? So, बहुत easy सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, like burning of candle. जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल को बर्न करने के टाइम पर क्या हो रहा है, the wax is being solid. ठीक है, तो वैक्स आपकी क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है. ठीक है, and when the combustion of candle is taking place, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, वेयर वाटर इज अ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. तो स्टेट चेंज हो गया आपका, राइट. वैक्स आपके पास सॉलिड था पहले, जब बर्न हुआ और कंबशन हुआ कैंडल का तो आपके पास वाटर प्रोड्यूस हुआ जिसका स्टेट लिक्विड था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ जिसका स्टेट आपके पास गैस था. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. आपके पास एक गैस है दैट इज अमोनिया, NH3. ठीक है, विच इज इन गैसियस स्टेट. ये आपके पास गैसियस स्टेट के अंदर है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ठीक है, इट गिव्स यू NH4Cl. ये भी आपके पास गैस है और ये आपको एक सॉलिड सब्सटेंस दे रही है दैट इज NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, आपके पास अमोनिया एक गैस थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो भी गैस की फॉर्म में था. जब आपने इन दोनों को रिएक्ट किया तो आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस आया दैट इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड. तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया. देखिए रिएक्टेंट साइड पर दोनों गैसियस प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो सॉलिड सब्सटेंस है. तो इसलिए आपका स्टेट क्या हो गया है, चेंज हो गया. दिस इज योर अमोनिया, दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and this is your ammonium chloride. ठीक है, तो आपके पास गैस से कौन सा स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड में स्टेट चेंज हुआ है. The gas has been changed to solid. आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एरोस क्यों लगाए हैं मैंने, राइट. जनरली मैं अभी तक जो केमिकल रिएक्शंस लिख रही हूँ उसमें मैं एरो इस तरह से लगा रही हूँ. ठीक है, बट ये वाला एरो मैंने इस तरह से लगाया है ना, ऐसे, राइट. व्हाट डज एरो मीन्स, इस एरो का क्या मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो सकती है, रिएक्शन वापस से रिवर्स हो सकती है. तो रिवर्सिबल इन नेचर का साइन होता है. जब भी आपको इस तरह का साइन दिखता है इट मींस दैट रिएक्शन इज
reversible in nature. Okay, so these were 5 characteristic. ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम. फर्स्ट वाज evolution of gas. Second was change in color. Third was change in temperature. Fourth was formation of precipitate. And fifth was change in state. ठीक है, तो हमने आज ये 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं. ठीक है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर. जब भी केमिकल रिएक्शन होगी इन पांचों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक या कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास परफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो एक बार आप उनको रीड करके रिवाइज कीजिएगा. ओके, थैंक यू.